اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، آج 25 دسمبر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سالگرہ کے حوالے سے یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے جو ہر سال ہوتا ہے اور اسی پنجاب ریسٹورنٹ میں ہوتا ہے. اور ہمیشہ ہمارے جو ادارے ہیں پاکستان ایمبیسی، انہوں نے ہمیشہ ہمیں عزت بخشی. وہ آتے ہیں، ہمارے مہمان بنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ ہی کیا کریں. اس سے پہلے پروگرام ہو چکا ہے پاکستان ایمبیسی میں، تصاویری نمائش ہوئی تھی. رانا صاحب آتے تشریف لے آئے. تصاویری نمائش ہوئی تھی، بڑی اچھی تھی. پہلی دفعہ ہم نے وہ تصاویر دیکھی اور اس کا کریڈٹ جو ہے پاکستان ایمبیسی کو خصوصی طور پر ڈاکٹر شمائلہ صاحبہ کو جاتا ہے. انہوں نے بڑی محنت کی، ان کی ٹیم نے بڑی محنت کی. اس کے علاوہ آج یہ ہمارا پروگرام جو ہوگا یہ آپ کا کمیونٹی کا پروگرام ہے، کمیونٹی فورم کا پروگرام ہے. آپ سب اس میں شامل ہیں، ہم ایک دوسرے کے مہمان ہوتے ہیں اور ہمارے درمیان سبھی لیڈر تشریف رکھتے ہیں اور یہ اپنی اپنی پارٹیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی میڈیا والے، حاجی صاحب، ملک صاحب، اپنا علی جاوید، ملک طاہر صاحب، یہ سارے ساتھی موجود ہیں اور بڑی خوشی سے ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور جو خاص کر ایربلزم سے ہمارے چیئرمین چودھری لیاقت صاحب بھی تشریف لائے، حالانکہ ان کی صحت بھی اتنی اچھی نہیں تھی لیکن انہوں نے اس دن کو مس نہیں کیا. ہمارے بابر صاحب ہیں جن کو سرکاری پوسٹ ملی ہوئی ہے، ان کو بھی ہم آج مبارکباد بھی دیتے ہیں اور خوش آمدید بھی کہتے ہیں. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو کریں گے، ہمارے جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی جماعتوں کے لیڈران بھی ہیں، سٹی کونسلرز بھی ہیں. تو یہ تلاوت جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آج شاہ صاحب تلاوت ہمیشہ کرتے ہیں. اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون. لا أعبد ما تعبدون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. مائک جو ہے حوالے کرتا ہوں ملک مبشر کے. مبشر آپ اپنے مہمانوں کو باری باری بلاتے جائیں. میں چاہوں گا پہلے کہ راجہ آپ نے کرنا ہے. میں مومنہ آپ کو کہوں گا بیٹے، آج قائد اعظم رحمۃ اللہ کے حوالے سے میرا بیٹا جو ہے آج کیا کہیں. یہ مائک اپنے پاس میں رکھ لیتا ہوں. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم. میرا نام مومنہ غفور افسر راجہ ہے. آج میں آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی. قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر کو پیدا ہوئے. آپ نے تعلیم حاصل کی، اچھے وکیل بنے اور اچھے لیڈر بنے تھے. آپ کی محنت
اور ہمت کی مثال تھے. آپ نے مسلمانوں کے لیے پاکستان بنایا. میرا اور آپ کا، ہم سب کا پاکستان. بہت شکریہ مومنہ راجہ. اب میں کہوں گا راجہ عمر کو. راجہ عمر آپ بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آرام سے جو ہے بیٹا یہ رکھ لیں اپنے پاس. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم. میرا نام راجہ عمر غفور افسر ہے. آج ہم قائد اعظم کی سالگرہ منا رہے ہیں. تاریخ 25 دن پیر مہینہ دسمبر سال 1876. شہر کراچی، دیش ہندوستان. انگریز حکمران. جب مسلمانوں کی آزادی کا چاند چمکا، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے. کون جانتا تھا جب یہ طالب ہوگا تو اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی. کون جانتا تھا جب یہ وکیل بنے گا تو بادوں کی عوانوں میں خوف طاری ہو جائے گا. کون جانتا تھا جب یہ سیاست میں قدم رکھے گا تو پورا ہندوستان کانپ اٹھے گا. کون جانتا تھا کہ اس کی ارادے اتنے مضبوط ہوں گے کہ جو بھی اس سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا. وہ نہ ٹرنے والا، نہ جھکنے والا، نہ بھگنے والا قائد اعظم محمد علی جناح تھے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندو اور انگریزوں کی غلامی سے ہمیں نجات دلائی اور اپنا ملک پاکستان بنایا. میں اس نوجوان نسل کا بچہ آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے پاکستان کو ویسا رکھا جیسے قائد اعظم کا خواب تھا؟ ہمیں پاکستان کے لیے کام 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 بس کام کرنا چاہیے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ راجہ عمر. اب میں کہوں گا میمونہ راجہ سے کہ آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم. میرا نام میمونہ غفور افسر راجہ ہے. آج 25 دسمبر قائد اعظم کی سالگرہ کا دن ہے. معزز سامعین، کہانیاں مرتب ہوتی ہیں، محو ہو جاتی ہیں، تہذیبیں نکھرتی ہیں اور بکھر جاتی ہیں، قومیں پیدا ہوتی ہے اور مٹ جاتی ہے، مگر ایک شخصیت جس کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. اور اس تاریخی دور میں انگریز مسلمانوں سے اقتدار چھین چکے تھے. ہندو سیاست میں بطاری ہو چکی تھی. عدل و انصاف کی شمع بجھ چکی تھی. ممبئی سے انگلستان تک تعلیم و تربیت کا سفر طے کرنے والا یہ ذہین شخص سیاست میں قدم رکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ مسلمانوں کو غلامی سے نجات ہی نہیں بلکہ الگ وطن کا ہونا ضروری ہے. قائد اعظم نے غلامی کی زنجیریں توڑ کر آزادی کی شمع کو روشن کیا. 7 سالوں کی کوشش سے بکھری قوم کو ایک لڑی میں پرو دیا. یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. اب ہمیں اپنے وطن کی شرازہ بندی کرنی ہوگی اور اپنا مستقبل روشن کرنا ہوگا. اس وعدے کے ساتھ، اے قائد اعظم تیرا نام تابندہ رہے گا، تیری یاد پائندہ رہے گی. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج یوم قائد ہم سب اکٹھے منا رہے ہیں اور میجورٹی جو ہے وہ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور کافی عرصے بعد آج سٹیج پہ دوبارہ مجھے موقع دیا گیا ہے راجہ صاحب کی طرف سے. سب سے پہلے سید اعجاز شاہ بخاری صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں چند الفاظ جو ہیں وہ ہمارے سامعین کے گوشے گزار کریں. سید اعجاز شاہ بخاری صاحب جو کہ براڈوی کمون کے کونسلر بھی ہیں اور سوشل ڈیموکریٹ پارٹی سے ان کا تعلق ہے. جی. تو آپ کو مبارکباد کے بعد آپ تمام احباب کا بھی شکریہ کہ جو راجہ صاحب کی اس دعوت پر تشریف لائے ہیں اور آج کی اس خوبصورت محفل کو مزید خوبصورت کیا. مجھے راجہ صاحب نے اپنے ابتدائیے میں کہا تھا جی کہ مجھے تقریر کروائی جائے گی مجھ سے، اور تقریر اور تکرار دونوں بڑے مشکل کام ہوتے ہیں اور میں دونوں میں ہی کمزور ہوں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو 3 بچوں نے جو گفتگو کی ہے، اگر ہم اس سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیں، کچھ سیکھنا چاہیں، کچھ عمل کرنا چاہیں تو مزید کسی نہ کسی تقریر کی ضرورت ہے، نہ کسی خطاب کی ضرورت ہے. جو کچھ ان 3 بچوں نے کہا ہے بطور سبق ہمارے لیے یہی کافی ہے. اور جب بندہ اس طرح کے بچوں کو دیکھتا ہے تو پھر بقول اقبال
बंदे को तसल्ली और तशफ़ी हो जाती है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो यकीनन इन बच्चों की तरबियत में इनके वालिदैन का बड़ा अमल दखल है। हमारे लिए ये सबक है कि अगर राजा गफूर अफजल साहब के 3 बच्चे यहाँ पर आज इस महफिल में इतने खूबसूरत अल्फाज अदा कर सकते हैं, तो क्या हमने अपने बच्चों को ये बात कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक सिखाई है, समझाई है? अगर सिखाई है तो हम लोग बाइसे सद मुबारकबाद हैं, और अगर हमने नहीं सिखाई तो कसूर हमारा है, हमारे बच्चों का कोई कसूर नहीं। मैं सिर्फ एक जुमला, मुझे पता है मुबशिर साहब फ्लाइट मूड में, इसका मतलब है कि मुझे अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर देनी चाहिए। सिर्फ कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो 3 अल्फाज हैं आपके गोश गुजार इसलिए करना चाहूँगा कि हम इनको बार बार याद रखें, जिसमें जो मोटो है कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। और अगर आप मुझे यहीं पर सज़ा न दें तो मैं ये कहने में शायद हक बजान होऊंगा कि इन तीनों मामलात में हम बहुत कमज़ोर हैं। तो कोशिश कीजिए कि इन तीनों चीज़ों को हम इंशाअल्लाह रिवाइव कर सकें, और अल्लाह करे ये इस तरह के दिन हैं जो ये हमारे इत्तेहाद का भी बंदोबस्त करें और हमें ये डिसिप्लिन भी सिखाएं, और हम इनसे ईमानदारी का सबक है जो वो भी सीख सकें। अल्लाह पाक हम सब पर अपना खुसूसी फजल व करम फरमाए। एक बार दोबारा दिगर आपको बहुत शुक्रिया। अब्बास रिजवी साहब को कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं राजा साहब आपको आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमेशा की तरह इस दफ़ा भी एक खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया और हमारी एम्बेसी ने उसमें शिरकत की, जिसके लिए हम उनके मशकूर हैं। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज का दिन जो है कायद-ए-आज़म की न सिर्फ याद को ताज़ा करना है, बल्कि उनकी जो इरशादात हैं जो हमें कह कर गए हैं उनको अपने अंदर जो है दोबारा उनको बेदार करना है और उन पर अमल करने का एक बहुत अहद करना है। कायद-ए-आज़म ने शुरू से इल्म की जो ज़रूरत है उस पर बहुत ज़्यादा, या बल्कि इल्म की अहमियत को बहुत ज़्यादा उजागर किया है। उन्होंने अपने कौल में फ़रमाया कि एक शख्स, अपने आप को शख्स ना बनाओ, अपनी शख्सियत की तामीर करो, क्योंकि शख्स तो मर जाता है और उसके बाद उसकी फौतगी के बाद उसका ख़ात्मा हो जाता है, लेकिन अगर शख्सियत बनाकर छोड़ जाए तो वो ता ज़िंदगी जारी रहती है। इसी तरीके से उन्होंने ये कहा कि इल्म जो है वो तलवार और दूसरे दीगर जितने हथियार हैं उनसे ज़्यादा मोहलिक है और उससे ज़्यादा कारगर है। उसकी वजह यह है, देखें कि कायद-ए-आज़म ने सबसे पहले कायद-ए-आज़म की अपनी मिसाल लें। उन्होंने इल्म हासिल किया, और किस ज़माने में इल्म हासिल किया और कौन सा इल्म हासिल किया? उन्होंने इल्म कानून हासिल किया, कानून पढ़े और ब्रिटिश राज के बनाए हुए कानून के मुताबिक उन्होंने काम किया और एक दिन भी जेल में नहीं गए। उस कानून के अंदर रहते रहते उन्होंने आज़ादी की तहरीक को आगे बढ़ाया, और उस आज़ादी की तहरीक से ये नतीजा निकला कि वो हमें एक मुल्क, आज़ाद मुल्क देकर गए। उन्होंने जाते जाते ये कहा था कि मुल्क लेना मेरा काम था, मैंने तुम लोगों को मुल्क ले दिया, अब इसकी तामीर आप लोगों ने करनी है। अब हम सब अपने अपने अंदर झांक कर देख लें कि हमने मुल्क की कितनी तामीर की है। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि भाई हम यहाँ पर बैठे क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम मुल्क की तामीर में बहुत ज़्यादा मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, चूँकि मैं पेशा वाराना तौर पर मैं उस्ताद हूँ, टीचर हूँ, और मैंने अपनी ज़िंदगी इसी एक नेक पेशे में गुजारी है, तो मैं कहूँगा हमारे पास जो कुछ है वो बहुत ही अहम है और बहुत ज़्यादा गिरां कदर है। हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आपके पास जिस भी इल्म की एक्सपर्टीज़ है उसको अपने मुल्क में जाकर फैलाइए, उस मुल्क में जो है उसको तरक्की का बायस बनाइए, और जब तक मुल्क में इल्म की रोशनी नहीं फैलेगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आप अगर आईटी के एक्सपर्ट हैं तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक जाइए, अपनी आईटी को वहाँ पर पहुँचाइए। अगर आप जो है प्लानिंग के माहिर हैं तो प्लानिंग के जो है आप जाकर वहाँ पर लोगों को तरीका सिखाइए। अगर आप डेमोक्रेसी के माहिर हैं, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर सियासत में बशमूल मेरे, तो पाकिस्तान में वो सियासत का आप कल्चर पैदा करें जो कि एक अच्छे जमहूरी मुआशरे में होना चाहिए। तो अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बड़ी गलत बात है कि हम कहें कि जी हम तो मुल्क से दूर हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, फ़कत एक इरादे की ज़रूरत है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी गुफ्तगू को सुना, और आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप सब तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त लगाकर, कीमती वक्त आप निकाल कर आए, इसके लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
جی میرا ایک ہی پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا حال ہے انکل، ٹھیک ہو؟ جی میرا بس کہنے کا ایک ہی پوائنٹ ہے جو میں کہنے کے لیے اٹھ کر یہاں پر آیا ہوں کہ ہمارے پاس نالج کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس ایکٹیو ہونے کی کمی ہے. ہمیں اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک چیز کی بات کرتا ہوں کہ آپ جو پاکستان میں اپنے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں وہ صرف اگر بینکس کے تھرو ہو جائیں تو یہی ملک کی بڑی خدمت ہوگی. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اپنے ملک کی مدد کرنے کے لیے. بڑے کاموں کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے ملک کے لیے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ جب ہم یہاں پر لوگوں سے ملتے ہیں تو اپنے ملک کی پازیٹیو بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پر کتنے مسائل ہیں، وہ سب کچھ ٹی وی میں ویسے ہی آ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں اپنے ملک کے لیے برانڈنگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہاں پر اپنے ملک کی برانڈنگ کرنے کی ضرورت ہے، کسی اور ملک کی برانڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک پراؤڈ نیشن ہے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے جو ہم دوسرے ملکوں کی طرف دیکھیں. تو اس لیے ہمیں اپنا جو رول پلے کرنا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنا کر اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. بہت بڑے کام کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہم اس اسٹیج پہ ہیں کہ ہم بڑی قربانیاں دے سکیں. تو آپ سب سے گزارش ہے آپ اپنے ارد گرد دیکھیں اور جو چھوٹی موٹی مدد ملک کی کر سکتے ہیں وہ انڈیویجولی بھی کریں لیکن کلیکٹیولی بھی کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ راجہ صاحب کہ آپ نے انوائٹ کیا ہے آج. میں بیسکلی 2 باتیں شیئر کرنا چاہوں گی. پہلی بات جو ہے وہ قائد اعظم کے اوپر آپ کو پتہ ہے انگلش میں کتاب لکھی گئی ہے جناح آف پاکستان، اور یہ پروفیسر اسٹینلی ورلپٹ نے لکھی ہے. اس میں سے ایک بہت خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. پہلے انگلش میں پڑھ کے بتاؤں گی پھر اس کا ترجمہ اردو میں بتاؤں گی. وہ لکھتے ہیں اس کتاب میں کہ few individuals significantly alter the course of history, few still modify the map of the world, hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all 3. تو یہ گورا ایک ایسا بندہ لکھ رہا ہے جو کہ انڈیا اور پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پر ایک اتھارٹی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل کے رکھ دیتے ہیں، اور ایسے تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے ہیں، اور ایسے کوئی ہوتے ہیں جو ایک مملکت قائم کر دیتے ہیں. محمد علی جناح ایسی شخصیت تھے جنہوں نے یہ 3 کام بیک وقت کر کے دکھائے. تو آئیے آج ہم یہ یاد رکھیں کہ جس طرح سے وہ اقلیتوں کی عزت کرتے تھے، ہم بھی بس اگر یہ سیکھ لیں اور یاد رکھیں کہ 14 اگست 1947 سے پہلے ہم بھی ایک اقلیت تھے اور 14 اگست 1947 کو ہم ایک اکثریت میں تبدیل ہوئے. تو آئیے بس اقلیتوں کی ہم اگر عزت کرنا شروع کر لیں، ان کو دل سے ہم قدر کریں انسانیت کو، یہی بہت بڑی چیز ہوگی. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم راجہ غفور افضل صاحب، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ. بہت خوشی ہوئی سب کو دیکھ کر آج اس موقع کے اوپر. ایک میسج آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ویسے وہ دل کا ایک کہہ لیں کہ آواز ہوگی دل کی، کہ یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن کے اوپر ہم اکثر گفتگو سنتے ہیں، لیکن شاید پوری قوم نہ پاکستان کے اندر نہ پاکستان سے باہر اس کو سمجھ سکے ہیں کہ اس کی روح کیا ہے. تو میں نے کسی انسان سے سیکھا تھا، جس بلڈنگ کے اندر آج ہم اکٹھے ہیں، انہوں نے بتایا کہ یونٹی کیا ہوتی ہے. اس بلڈنگ کے اندر بہت سیمنٹ لگا ہے، یہاں پہ شیشے لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ بہت ساری اینٹیں لگی ہیں، یہاں پہ لکڑ کا استعمال بھی ہے. تو وہ چیزیں جن کا نام میں نہیں لے سکا وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. ان ساری چیزوں نے اتفاق کیا ہے، ان ساری چیزوں نے اتحاد کیا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ ایک خوبصورت بلڈنگ جو ہے وہ ہمارے لیے کھڑی ہوئی ہے. تو ہم جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ، میں سمجھتا ہوں کہ یونٹی کا مطلب اگر ہم سمجھ لیں، پاکستان کے اندر بھی ملک بدل سکتا ہے اور ہم باہر رہ کے بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. تو ہم سب کو اس کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. ٹائم بہت کم ہے، پھر انشاءاللہ کسی وقت ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. محترم راجہ غفور افضل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کو بہت مبارکباد. آپ نے یہ پروگرام ہر سال کی طرح منعقد کیا. علامہ اقبال کے ایک شعر کے ساتھ
निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जान पुरसोज, यही रखते सफ़र मीरा कारवां के लिए। आज हम यहाँ पे पाकिस्तान बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हैं। कायद आज़म की ज़ात पर उनकी गैर मामूली जहानत, उनकी बसीरत, कायदाना सलाहियत और सियासी जद्दोजहद पर जितना कहा जाए कम है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना असूल, नज़रियात और अफ़कार पर कितनी किताबें लिखी जाएँ वो भी कम है, लेकिन हम बासियत कौम अगर कायद के एक फरमान जो मेरे आगे भी मेरे एक भाई ने कहा, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, इस पर अमल कर रहे हैं, तो हम सही मानों में एक ज़िंदा कौम बनकर इक़वाम आलम में अपना मकाम बना सकते हैं। आज अगर हमने एक कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है तो दुनिया में इज़्ज़त, एहतराम और वक़ार से रहना है, तो हमें कायद आज़म के असूलों पे जाना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। अल्लाह हम सब कामयाब और नासिर हो। हम जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मैं एक शेर से आगाज़ करता हूँ कि हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान को एक अजीम लीडर मिले थे और उन्होंने हम सब के साथ मिलकर, हमारे बुज़ुर्गों के साथ मिलकर पाकिस्तान का क़याम किया था और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। लेकिन अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जब आखिरी वक्त था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अब इस दुनिया से खुश होके जा रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना नामुमकिन था। इसमें फैज़ान नबवी शामिल है और इस वजह से पाकिस्तान वजूद में आया और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान क़यामत तक ज़िंदा रहेगा, क़यामत तक कायम रहेगा। और एक वो वक्त आएगा कि पाकिस्तान दुनिया के फैसले करने में पाकिस्तान शामिल होगा। अभी यासर भाई ने कहा कि हमें कोई नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो ज़रूर सोचना चाहिए कि वो वजह क्या है कि हम अभी तक अपनी मंजिल क्यों नहीं पा सके। मैं सिर्फ 2 पॉइंट पे बात करूंगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा उसकी कमी है। आप जब वहाँ पे बोलते हैं आपकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। और इसमें एक पंजाबी शायर है, वो शेर कहता है कि सोचा दी ये मैयत लैके हुण मैं केड़े घर जावांगा, जे बोलांगा मार देवणगे, ना बोलांगा तो मर जावांगा। और आप देख लें मार रहे हैं लोगों को। और जो दूसरी बात है, रूल ऑफ लॉ फॉर एवरीवन, ठीक है, सब के लिए बराबर होना चाहिए। और मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब यहाँ पे बैठे हैं। आज यहाँ पे बैठने का कोई मकसद होना चाहिए, एक मकसद लेके हमें जाना चाहिए। और यहाँ पे तमाम ज़ात, बरादरी, शहर और ख़त्म करके हम सबको पाकिस्तानी होके मिल के आके काम करना है। वरना 1975 से यहाँ बुजुर्ग आए हैं और आप देखें हालात बुरे से बुरे हो रहे हैं, कानून बदतर से बदतर बन रहे हैं। सिर्फ एक ज़रूरत है कि हम इत्तेहाद कायम करें, आपस में इकट्ठे रहें, तो तभी हमको अपनी मंजिल मिलेगी। और बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर राजा साहब आपका और डॉक्टर शमाइला साहब और सिकंदर भाई और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले राजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने असलाफ़ की ये यादाश्तें कायम रखी और सिर्फ कायम नहीं रखी, आपने अपनी औलाद में ट्रांसफ़र की। यही हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये पैगाम आगे तक पहुँचाएँ। मैं बात थोड़े से मुख्तलिफ़ एंगल पे करना चाहता हूँ कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो पाकिस्तान हमें दिया, वो तो एक आला ज़रफ़, एक बहुत बड़े इंसान थे। वो अमानत हम तक पहुँचा कर गए और हमने उस अमानत के साथ क्या किया। नतीजे जो हैं उस पर बात होती है और हमको नताइज देखने चाहिए। आज नतीजा हमारे सामने है और ये नतीजा हमारे सामने क्यों है? आज पाकिस्तान ने वो तरक्की क्यों नहीं की? आज पाकिस्तान उस जगह पर क्यों नहीं है जिसका ख्वाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था? उसमें खराबियाँ कहाँ कहाँ पर थी? उसमें हुक्मरान कौन कौन से रहे? जमहूरियत भी रही और डिक्टेटरशिप भी रही। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क पर हुक्मरानी की, हुक्मरानी के नताइज के सिलसिले में आज हमारे सामने जो पाकिस्तान है उस पर अफसोस होता है। आइए, आज वो लम्हा है, बात तो बड़ी लंबी हो सकती थी, हमारे सामने है। इसके ऊपर बीइंग ए नेशन हमें सोचना होगा कि हमने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की। जिन लोगों को इक़्तिदार हमने दिया, उस इक़्तिदार को लेने के बाद वो सारे ब्यूरोक्रेट्स, वो सारे हुक्मरान उनके फ़ैसलों के नतीजे में आज ये बच्चे जो सवाल कर रहे थे ये मकरूज़ क्यों हैं?
आज पूरी नेशन मकरूज क्यों है, आज पाकिस्तान के हालात इस तरह क्यों हैं। आइए आज मिल के बैठ के ये सोचते हैं कि आगे हमने अपने मुल्क को किस तरीके से लेके जाना है, किस समत में जाना है। हमारी एक प्रॉब्लम है, हम अपने असलाफ की बातों से बड़े ही महजूज होते हैं, बड़े खुश होते हैं। दीन की बात हो तो हम हदीस रसूल सुनकर बड़े खुश होते हैं कि हमारे असलाफ में ये लोग गुजरे। हम अपनी जंगों के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि बड़े बड़े खूबसूरत लोग गुजरे। हम क्या हैं, हमने क्या करना है, हमने अपनी ज़ात में, अपने किरदार में वो चीज़ें क्यों नहीं अपनाई कि जिसके नतीजे में एक बेहतर पाकिस्तान होता। आइए मिल के ये फ़ैसला करें, सिर्फ महजूज नहीं होना, हमने अपनी ज़ात में अपने आप को बदलना है। और जब फ़ैसले करें अपने मुल्क के तो यूँ फ़ैसले करें कि जिसका नतीजा एक बेहतर पाकिस्तान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको देख के एक सालाना गैदरिंग होती है, बड़ी खुशी हुई है। और राजा गफूर साहब का शुक्रिया कि वो पिछले कई दहाइयों से ये फंक्शन करते हैं और साल में एक दिन हमें ये एहसास होता है कि हमें कौम है, क्योंकि वो बिला तमीज़ हर किस्म की तंजीमों को दावत देते हैं। और ये मैं समझती हूँ कि सलाम इस चीज़ को, क्योंकि हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। और मैं समझती हूँ ये ठीक है, 25 दिसंबर कायद आज़म की यौम पैदाइश है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसे कौम, ये हमारी यौम तजदीद है अपने मुल्क से मोहब्बत और वफा की, कि हम इस चीज़ को याद रखें। मेरे से पहले राजा बाबर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डेनमार्क के बारे में बात करूँगी कि हम अगर तब्दीली लाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले तब्दीली पाकिस्तानी माशरे में लानी चाहिए। यहाँ पे हम कितने ग्रोह में बटे हुए हैं और बड़े शर्म की बात है, मुझे आपको मेरी आदत का पता है, मैं थोड़ी तीखी बातें कर जाती हूँ, कि जो बावसाइल पाकिस्तानी हैं, जिनके पास वसाइल हैं, वो कम वसाइल वाले पाकिस्तानियों को एक्सक्लूड करते हैं। क्यों? हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर हमारी ज़ात में एक वसाइल दिया है, हम अपने बहनों और भाइयों को साथ लेके चलें। मैं ऐसे स्कूल टीचर बहुत तरह की फैमिलीज़ को देखती हूँ। आज राजा साहब के 3 बच्चों ने अपनी इंतहाई खूबसूरत तकरारीर में ये साबित किया कि बच्चों की तरबियत और उनको अपने मुल्क से मुंसलिक करना ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। क्योंकि बतौर वालिदैन हर वक्त ये कहना, आपको पता है डेनमार्क में तो ऐसा ही होता है, नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ये 3 बच्चे 3 मुख्तलिफ शख्सियात हैं, ऐसा भी हो सकता है। मैंने ऐसे बच्ची अपनी पहली स्पीच 1973 में की थी ग्लैसक से गेस्ट आबाइडा क्लब में, तो मुझे वो ज़माना याद आ गया कि ऐसा भी हो सकता है। उसके अलावा मैं एक बात कहती चलूँ कि बात पता नहीं किसने की थी कि हमें यहाँ पे अपनी इज़्ज़त बनानी चाहिए। बिल्कुल बनानी चाहिए, और वो इस तरह बनानी चाहिए कि कोई तो एक नुक्ता हो कि ऐसे कौम हम उस पर इकट्ठे हों। मेरे सामने सिकंदर बैठे हैं, ये मेरे बच्चों की तरह हैं, मेरे हस्बैंड से पढ़े भी हुए हैं। एक शख्स ने कोशिश की थी, पाकिस्तानी कौम सारी कहाँ थी? एक शख्स ने कंप्रोमाइज़ किए बगैर कुछ बातें कही थी, ऐवान हिल गए थे, लेकिन हम नहीं हिले। हमें किसी को याद आया कि जी इसके फादर का ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, किसी को कुछ याद आया। मैं कहती हूँ कि इंतहाई मेरे लिए एक अज़ियतनाक बात थी कि एक इंसान ने हम सब की वो जो हम सोचते हैं चीज़ें, जो बात करते हैं, उसको आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, हम फिर भी बटे हुए थे। तो हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी नई नस्ल पे हमारा ये कर्जा है कि हम सिर्फ उनको चपाती और सालन खिला के ना बताएं कि वो पाकिस्तानी है, अपने अमल से बताएं, उनको समझाएं, उनसे ज़ुबान से, उर्दू ज़ुबान से उनका ताल्लुक़ रखें। कोपेनहेगन की कमून में उर्दू की ज़ुबान मुफ्त है, लेकिन बड़ी मुश्किल से स्टूडेंट आते हैं। ज़ुबान का और जज्बात का बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। इसके साथ ही शुक्रिया। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले राजा साहब आपको ये खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपका जो कम्युनिटी फोरम है, ये वाकई हमारी सारी कम्युनिटी का वो प्लेटफॉर्म है जिस पे हम सब इकट्ठे होते हैं। मुझे नहीं याद कि कब सारी पाकिस्तानी जमातें, PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी और जितनी भी हमारी समाजी तंजीमें हैं, वो
वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों। मैं समझता हूँ कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का जो सबसे पहला मैसेज था वो यही था। तो मैं समझता हूँ ये पहला स्टेप है, इसके लिए आपको खराज तहसीन की पेश करता हूँ। हमारे फाउंडिंग फादर कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही ग्रेट शख्सियत थे। अक्सर ये कहा जाता है उनके बारे में कि वो दो महाजों पे लड़े। वो कांग्रेस के साथ लड़ते रहे, नेहरू के साथ, महात्मा गांधी साहब के साथ, और इसके साथ साथ अंग्रेज़ों के साथ लड़ते रहे। मैंने जो थोड़ी बहुत स्टडी की है, मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूं कि हमारे फाउंडिंग फादर दो महाजों पे नहीं लड़े, एक ही वक्त में 3 महाजों पे लड़े। एक कांग्रेस के साथ, एक अंग्रेज़ के साथ, और एक हमारे दौर के हमारी मुल्ला के साथ। आप देखें कि कितनी मुश्किल हालात में, कितनी सख्त हालात में कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपना मौक़िफ़, अपना मिशन उसको जारी रखा। ये इतने ग्रेट सियासतदान थे, इतने ग्रेट इंसान थे कि अभी तो मेरी बहन हुमा साहिबा ने, स्टैनली वर्बर्ट ने जो उनके बारे में अल्फाज किए हैं वो हमें वो बयान किए हैं। इसी तरह नेल्सन मंडेला ने, इसी तरह बड़े बड़े लीडर्स ने उनके बारे में खूबसूरत अल्फाज और बड़े अल्फाज किए। अनफॉर्चुनेटली हमारे फाउंडिंग फादर वेस्ट में वो मकबूलियत किसी वजह से, किसी मैं कहूँगा सियासी वजह से हासिल ना कर सके। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, लेकिन डेनमार्क भी हमारा मुल्क है। बल्कि मैं कहूँगा हम लोग जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, ये हमारा फर्स्ट मुल्क है। पाकिस्तान में हमारे रूट्स हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं, मैं और अशम, डेनमार्क हमारा मुल्क है। और मैं समझता हूँ कि हमारे कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो टीचिंग्स हैं वो यूनिवर्सल हैं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो आप लोगों ने कही है कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किस तरह काम कर सकते हैं, इनकी टीचिंग्स और इनकी जो लेसन्स हैं उनको सीख के। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके तरह ज़रूरी ये भी है कि हम ये देखें कि हमारी जो सिचुएशन डेनमार्क में है, हमारे जो बच्चे यहाँ पे है, हम कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के लेसन और टीचिंग्स को एडॉप्ट करके यहाँ पे अपने हालात किस तरह बेहतर कर सकते हैं। ये जो बच्चे हैं, खूबसूरत बच्चे जो हैं, इनके लिए सबसे ज़रूरी ये है, हम यहाँ पे भी अक़लियत है, हमें यहाँ पे भी पाकिस्तान को कैटेगरी 5 में डाला हुआ है। हम अपने माँ बाप को नहीं बुला सकते, ये ह्यूमन राइट है, लेकिन हम नहीं बुला सकते। हम अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकते, ये एक ह्यूमन राइट है, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ मेरे बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, मैं समझता हूँ कि इन बच्चों के लिए और हमारे यहाँ पे अगली नस्लों के लिए हमने अब ये देखना है कि हम कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो लेसन्स हैं और टीचिंग्स हैं उनको हम यहाँ पे, यहाँ के पर्सपेक्टिव के हवाले से और यहाँ पे हम किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे भी हमारी वही, आप कह लें कि हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम अक़लियत थे, यहाँ पे भी हम अक़लियत है। तो आएँ हम अपने कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की टीचिंग्स, लेसन्स, सबक को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें और दिखाएं कि पाकिस्तानी कौम, डैनिश पाकिस्तानी कौम डेनमार्क में ज़िंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों को मुबारकबाद कायद अज़म डे की। मैं गुज़श्ता जितने सालों से जब भी मुझे मौका मिला है, मैं यहाँ रहा हूँ, तो मैंने हर साल, ज़ाहिर है सब लोगों ने ये बात की है कि आप ही हैं पाकिस्तान कम्युनिटी के फ़ोरम से कि आप उसका एहतमाम करते हैं और तमाम लोग आते भी हैं। मैं सिर्फ कायद अज़म डे के हवाले से ही बात करूँगा, वो ये कि कायद अज़म का बहुत सारे कोट्स में से एक कोट है, एक उनका फरमान है कि नाकामी वो लफ्ज़ है जिससे वो बिल्कुल ना आशना है, वो उससे आशना नहीं है। तो तमाम मुश्किलात के बावजूद दुनिया में आप जहाँ भी रहते हो एज ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान के सियासी मुआशी हालात जो भी हों, उसके लिए मुस्बत कोशिश करना आपका फ़र्ज़ है। बाकी जो वहाँ पे अरबाब व इख्तियारात हैं वो भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरह निभाते हैं,
जिस तरह के हालात वहाँ पे बैन अल-अक़वामी और कौमी हालात हों, हम सबको इस बात पे बिल्कुल मैं ये समझता हूँ इत्तफ़ाक़ करना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात का ताल्लुक़ हमारे रहने वाले लोगों से है। रूहानी तौर पर, हर लिहाज से, मुआशी तौर पर $20 बिलियन आप लोग पाकिस्तान ज़र मुबादला भी भेजते हैं। लेकिन मेरी ये सिर्फ़ एक ही गुजारिश होगी, मैंने लास्ट ईयर भी एक गुजारिश की थी कि जब भी आपको मौका मिले, मुश्किलात के बावजूद आप पाकिस्तान के बारे में पब्लिक प्लेसेस पे, पब्लिक फोरम से अच्छी बात करें। आप बैठकर एक दूसरे के साथ तजिया ज़रूर पेश करें और इख्तलाफ राय भी करें, और अगर मुमकिन हो सके तो तजावीज़ दें। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी हुकूमत, कोई भी इदारा बग़ैर ओवरसीज़ पाकिस्तानी और वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी जब तक अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद पूरी नहीं करेंगे, एक हुकूमत वो काम नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह, इतना कायदम के बारे में तो आप मुझसे ज़्यादा ही जानते होंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं एक बात करूँगा। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के हमारे वहाँ पर इस तरह से हमें नेगेटिविटी वहाँ पर सोशल मीडिया पे आती है, डिफरेंट पे आती है, तो ये चीज़ हमें इसको काउंटर करना चाहिए। जैसे एक माँ रोती है, कहती है मेरा बच्चा को कोई ले गया, कोई मार रहा है, हम बाद में देखते हैं कि पाक आर्मी उड़ती है, छोटू गैंगवार से जाकर वहाँ बच्चे को छुड़वा के लाती। ये चीज़ मीडिया पे नहीं आती। हमारे मुल्क में ये है कि जो वहाँ कहते हैं बच्चों को मारना आपको जन्नत मिलेगी, APS का जो वाक़या है, वहाँ पर क्या होता है कि हमारी वाहिद कौम है पाकिस्तान की जो जमा होकर, आप देख लें, कंपेयर करें मिडल ईस्ट के अंदर डिफरेंट जगहों पे कहीं पर भी इंतशार और फितना फैला है, हमेशा वो कामयाब हुआ है और जो वहाँ की फौज है उसको शिकस्त हुई है। आप सीरिया को देखें, अफगानिस्तान को देखें, इराक को देखें, यमन को देखें, आप लीबिया को देखें, व्हाटएवर। ये वाहिद कौम है पाकिस्तान की जो हम साथ मिलकर हमने इसके ऊपर काबू पाया और फितना इंतशार को ख़त्म किया। और मैं ये चाहता हूँ बिल्कुल एज ए हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ पर हैं, वो बहुत से लोगों ने भी कहा है यहाँ पर कि हमें इंटीग्रेशन होना चाहिए। आपको हमें बिल्कुल ये हमने एहसास है इस चीज़ का कि पाकिस्तानी पासपोर्ट है, लोग कहते हैं इसकी इतना वीज़ा नहीं मिलता, इतनी कुछ नहीं हमें वहाँ पर इस तरह होता। आई डू रिस्पेक्ट, ये सही है। क्यों है ऐसे? वजह क्या है? 5 क्लास की जो मुझे अभी दी है, क्या वजह है उसकी कि हमें क्यों नहीं हो rहा? Sim, alltså det ser man på svenska också, man måste tänka på och komma på lösningar, inte bara man ska prata på bara problem, हमें solution पे जाना चाहिए। क्यों? हमें चाहिए हम अपने बच्चों को तालीम प्लस बिजनेस करें, हम अपना यहाँ पर इतना अपने आप को सॉलिड करें। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जूइश बड़े लोग कहते हैं जी ये हो गया, थोड़े से क्या है, दे आर स्मार्ट, वो बिजनेस को देखते हैं, वो अपने आप को डेवलप करते हैं, वो अपने स्किल्स को ऊपर करते हैं। हम माशाल्लाह हमारी जनरेशन है, तीसरी जनरेशन है यहाँ पर हमारी, वो सॉरी स्वीडिश में आ जाती है। क्यों? हम क्या कर रहे हैं? हमें देखिए, हमने माशाल्लाह 50 साल है, बड़ा अच्छा हाउस ऑफ पाकिस्तान ने शील्ड दी है, मुझे बड़ा वो हुआ है। लेकिन आप 50 साल मैंने यहाँ पर, या मैंने 20 साल गुजारे हैं, मेरे बच्चे हैं, वाह यार मैंने क्या किया और मैं किस तरह कर सकता हूँ। तो बिजनेस करें अपने, बेशक पासपोर्ट कुछ होता है, लेकिन अगर कोई वहीं पर भी पता हो कि कम्युनिटी बिजनेसमैन है, हमारी इज्जत होती है। बहुत शुक्रिया। मैं तो कहता हूँ कि पीपल पार्टी या सियासी जमातें जितनी भी हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रुपबाजी होती है, खुदा के लिए यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी बने। मेरी हर वक्त यही दरख्वास्त है कि पाकिस्तानी बने, लेकिन मेरे वोट इतने नहीं हैं कि पाकिस्तानी कोई भी है। इनका होता है कि पीपल पार्टी में भी 2 ग्रुप हैं, आप देखें कि इमरान पार्टी 4 ग्रुप बने हुए हैं, तो हम बट गए। पिछले साल भी यही बात की थी, इस दफ़ा भी यही मैसेज दूंगा, खुदाया खुदाया सिर्फ पाकिस्तानी बस यही। मैं आपके कामों में हायल नहीं होना चाहता हूँ। खज़ां हो गई यार बहार वाली, माशाल्लाह, खज़ां हो गई यार बहार वाली, दिन लुट गए जड़े गरूर दे सन, दिन लुट गए जड़े गरूर दे सन, शोखी रही ना उन्ना विचारियां ते जेड़े चमन गुलां नूं घूरदे सन। जे यारी लालिए सच्चे रब वाली, और यारियां सबे ख्वारियां ने, जे
यारी नाल ये सच्चे रब वाली और यारियां सबे खुआरियां ने जिन्ना रब नूं सार दित्ता उन्हें जित्तियां बाजियां हारियां ने पाकिस्तान जिंदाबाद। तेरे दोस्त ने मेरा नाम ले लेते हैं, इस वक्त मैं बैठा तो बड़े खामोशी है। मिंटो पार्क दे विच जलसा हो रहा सी ते देहाती लोग भी पुराने बुजुर्ग भी बैठे, उन्होंने कहा बाबा जी थानू कुछ समझ आ रही है? उन्हें क्या समझ नहीं आ रही है, जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, समझ आवे ना आवे जो ने किया है और क्या आवे ते खुदा दा वास्ता एक रिक्वेस्ट कीजिए, एक ते वैद दी पाबंदी रखो, वादा करो ते पूरा पहुंचो, इसे को नहीं मैं नहीं ते दूसरा खुदा दा करो झूठ बोलना बंद कर दो सब अच्छी बात। जिंदाबाद। कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब एक बहुत बड़ी अजीम हस्ती थे। उन्होंने अपने असूलों से, अपनी खुददारी से, अपनी तलीम और तरबियत से लेकर अपनी वकालत के टाइम और असूल पाकिस्तान के लिए, आज़ादी पाकिस्तान के लिए, तरीक़े पाकिस्तान के लिए जो जंग लड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसका फल खा रहे हैं। तमाम लोगों को यहाँ पर खुश आमदीद। सफ़ीर पाकिस्तान में फारूक साहब की तरफ से और मेरी तरफ से मैं सब लोगों को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 140वां योम पैदाइश की मुबारकबाद देना चाहूँगी। मेरे ख्याल से कायद आज़म की जो एक कसीरुल जहत और एक हमा परवर शख्सियत है, उस पर हर लिहाज से तमाम लोगों ने एक रोशनी डाल दी है, उनकी पर्सनल लाइफ पर भी, उनकी सियासी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर भी। मैं जिस बात पर इस वक्त एम्फेसिस करना चाहूँगी वो ये कि कायद आज़म की शख्सियत के गिर्द हम लोगों ने एक बाफुकुल फितरत शख्सियत का लिबादा चढ़ा दिया। हम लोगों ने एक बाफुकुल शख्सियत फितरत के लेंस से देखते हैं। हम लोग को ये बड़ा इस बात पर गौर करना चाहिए कि कायद आज़म बनने से पहले ही वॉज अ रेगुलर ह्यूमन एंड ही वॉज ओनली मोहम्मद अली जिन्ना। इंसानी फितरत के तकाज़ों की और इंसानी ज़िंदगी के या इंसानी शख्सियत की जितनी भी ज़रूरियात या कमज़ोरियाँ होती हैं, उन सब का उन्होंने भी सामना किया था। हम लोग अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ फ़ैसलों में मुख्तलिफ़ कमज़ोरियों का शिकार होते हैं, कभी अपने पीयर प्रेशर की वजह से या अपनी ज़ाती शख्सियत की कमज़ोरियों की वजह से। मैं अपने लिए भी ये बहुत कोशिश करती हूँ और मैं चाहूँगी कि हम सब सिर्फ अगर एक अपने लिए एक असूल बना लें कि ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन हो उसमें वी ऑलवेज़ हैव टू टेक अ डिसीजन बेयरिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड दैट इज़ पॉसिबल, चाहे वो ऑनेस्टी का हो, ब्रेवरी का हो, सच बोलने का हो। तो कायद आज़म की जो शख्सियत का इर्तिका का एक सफ़र है, वो रफ्ता रफ्ता हर स्टेप पर हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का सफ़र है। स्टेनली वॉलबर्ट का हवाला हुमा ने भी दिया, सिकंदर साहब ने भी दिया, और उसके अलावा जो मौलाना मोहम्मद अली बड़ी एक तहरीक पाकिस्तान की मेन शख्सियत रही हैं, उनकी बुक है रोड टू पाकिस्तान। उसमें जब वो अपने लिए कहते हैं कि उन्होंने कायद आज़म की ज़िंदगी से क्या सबक सीखा, तो वो कहते हैं कि ही हैज़ नेवर सीन अ मैन विद सो सिंगुलैरिटी ऑफ पर्पस एंड क्लैरिटी ऑफ हिज माइंड, यानी कि मकसद की एक यगानियत और जहन में एक शफाफियत के वो किस मकसद किस रास्ते की तरफ जाना चाह रहे हैं। Unless we have that direction of purpose and clarity of mind, we cannot, I think, achieve any purpose. Secondly, मैं एम्बेसी का ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने इसी लिहाज से एक तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया है, जिसमें कायद आज़म की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को हमने टच करने की कोशिश की है। उसमें सर की इंस्ट्रक्शन पर, अहमद फारूक साहब की इंस्ट्रक्शन पर हम लोगों की मेन फोकस ये था कि हम लोग उन तस्वीर को ढूंढ कर लगाएं जो हमारी तो आम तौर पर हमारी नज़र से नहीं गुजरती। चंद एक तस्वीर हैं जो हर जगह हम लोग लगा देते हैं। कायद आज़म की यंग बैरिस्टर वाली एक पिक्चर है, या फिर एक उनकी पहला सदारती खिताब देते हुए तस्वीर है, लेकिन उनकी मुख्तलिफ तस्वीरें जैसे हम लोग उनको एक बहसियत इंसान देख सकते हैं कि एक वो हाईटी पे बैठे हैं नवाबा बहावलपुर की तरफ से, हिज पासपोर्ट, हिज फायरआर्म लाइसेंस, टू ओनली सी हिम दैट द ह्यूमन ही वाज। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग हर वीकेंड पर वो जो नुमाइश है हम लोगों की है, आप लोग आएँ और ज़रूर देखें। उसके साथ हम लोगों ने कायद आज़म की ज़िंदगी की बहुत तस्वीर हम देखते हैं, बहुत कम उनके क्लिप्स में मौजूद हैं। अगर हम देखें कि वो शिमला में जब वो गए हुए थे तो वहाँ पर उनके एक स्ट्रॉलिंग की एक छोटी सी क्लिप है, या फिर एक पाकिस्तान की पहले दस्तूर सारी असम्बली से खिताब के वक्त उनकी जो एक क्लिप है वो बोलते हुए मौजूद है। तो एक ज़िंदा जावेद शख्सियत की तरह उन्हें बोलते हुए सुनना मैं समझती हूँ कि मेरे ज़ाती तौर पर एक मुख्तलिफ किस्म का तजुर्बा था। तो आप लोग ज़रूर तस्वीरी नुमाइश देखने आए। और दूसरा, आई वुड ओनली से दैट वी शुड ओनली स्ट्राइव टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स इन आवर लाइफ। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आजादी
एहसान है एहसान। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आजम तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आजादी की दुनिया